look at the Indian sort of constitution, we have in the political and civil rights a space where minority rights are protected, but in the entire, what do you say, social, political, social, economic rights, minority rights have not yet been established as rights. There is a very strong bias, institutional bias in almost at every level. Whether it is bureaucracy, whether it is whichever official place you see, and officers that are supposed to implement these policies, there's a heavy bias. And in the last 2-3 decades, the kind of communalization that has taken place. Because of that, even if you bring in policies, they end up not reaching out to minorities. Different researches in all the senses that in all development SDI indicators they are at the bottom. Almost there are pockets where they are even much worse than the right. It's very important that the safeguards are put within the policy itself, so that there is no possibility of a communal officer not reaching into the minorities. The Planning Commission had also in the 12th five-year plan mentioned that there would be service centers opened up in the minority concentrated districts, MCDs as we know, earmarked by the government, and these centers would work towards this objective. And so from there we took up this idea of piloting these service centers, facilitation centers, and through this on a pilot in a pilot mode, see how a facilitation center dedicatedly working towards accessing social economic rights of religious minorities would work. What would be the challenges? How could it be set up? What would be the technical capacity building needs, and so on and so forth. And with this objective, Rehnuma centers were initiated. The idea of Rehnuma initiative is fairly simple, but I think very, very critical in ensuring the implementation of the 15 Sutri Karyakram, as it's called in Hindi, the 15-point program. The idea is to create a center in the minority concentration districts. The center is going to have human resource who are very well versed with the schemes of the government. They understand what this 15-point program is all about and the other schemes of the government for minorities. And they also have a good interface with the district administration. The program is anchored by the National Foundation for India based in Delhi, and the Center for Social Justice plays the role of technical capacity building unit, and we have been able to build modules for training on minority rights for paralegals as well as lawyers. We have done 2 modules of paralegal training, and we have done 1 module of lawyers training specifically on minority rights. हम लोग हमेशा औरतों से तो बात करते थे, उनके इश्यूज पर्सनल, ज़्यादातर औरतों का इशू विद इन द फैमिली और पेट्रियार्कल सिस्टम को लेके होता है। हम कभी किसी मदरसे वालों से बात नहीं किए थे। हम
लीडरों से बात करते थे, लेकिन लीडरों से सिर्फ औरतों के एम्पावरमेंट के बारे में बात करते थे। हम लीडरों से उनके दूसरे इश्यूज जो जनरल मुस्लिम्स के इश्यूज हैं, इस पर हम कभी फोकस करके बात नहीं किए। लेकिन रहनुमा की वजह से हम लोग उसके साथ तो इन्वॉल्व हुए ही, साथ में हम मदरसे के मौलवियों से बात करने लगे, हम मदरसे के लड़कों और लड़कियों से बात करने लगे, हम वकीलों से बात करने लगे। To drive the partners towards social justice orientation, to drive them towards that approach of working of human rights has been a kind of a challenge, because much contrary to what we thought and what we believed, most partners do not have that understanding of working with a social justice approach or a human rights approach. So even if theoretically they know, but in practice, what does it mean? What does it mean when it comes to building strategies in those framework is not is something that has required much push, also and also skill building and perspective building in those areas. तो बस्तियों में हम लोग ज़्यादातर लीगल अवेयरनेस मीटिंग करते हैं। उसमें क्या है, जो भी औरतों के राइट्स हैं, उनको जो भी मतलब अभी तक मालूम नहीं था, तो हम लोग बस्ती में जाके उनको एक घर के अंदर रख के, घर के अंदर जो लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए उनके घर के सामने ही हम लोग मीटिंग करते हैं कि आप दूर तक तो नहीं आते, अब ठीक है हमारे आपके घर के पास ही रख रहे हैं, आप आइए। तो हम लोग 10-15 मिनट वहाँ पर लोग अरेंज करके 1 घंटे की ऐसा मीटिंग करते हैं। मीटिंग करके उसमें जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में है, जो भी उनके राइट्स के बारे में है, जो जैसा आपका 15 पॉइंट्स के बारे में है, जो भी अवेयरनेस हो सकता हम लोग उनको देते। उसके बाद जिसका जो प्रॉब्लम रहता मीटिंगों के बस से उन लोगों खुद आके बताते। In some places we are really hopeful that some result will come. In West Bengal, we have been able to get the DLSA to open a legal clinic in our office, the host organization, office of the host organization, and some of the team members have been recognized by the DLSA as paralegals. यहाँ पे इस्लाम नगर एक पास में गांव है जो मध्य प्रदेश के भोपाल रियासत की पुरानी राजधानी रहा है। वहाँ के लोगों से कई सालों से रह रहे थे, उनकी ज़मीन और उनके आवास का कोई पट्टा नहीं था। तब मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास योजना का एक घोषणा की कि जो व्यक्ति जहाँ पर काबिज है, जो रह रहा है, उसको वहाँ का उसका मालिकाना हक दिया जाएगा जिस झुग्गी में वो रह रहा है। उसको लेके हम लोगों ने एक बल्क में करीब 400-450 आवेदन गांव से इस्लाम नगर और एक पतरौन गांव है जो बरगुज तक, वहाँ से कराए। वहाँ से कराने के बाद फिर ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित किया कि इन लोगों को जो जहाँ पर रह रहे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए। ये ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया। उसको लेके हम लोग जब वहाँ SDM और तहसील में हम लोगों ने जब पूरे आवेदन यहाँ से रहनुमा के जरिए वहाँ पहुँचाए, कुछ लोगों को वहाँ पर पट्टे अभी अलर्ट हो गए हैं। सरकार ने तो काम नहीं किया। वो MP नगर से रहनुमा डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उन लोगों ने हम लोगों का क्या नाम है कि ग्रामीण योजना के तहत क्या राशन कार्ड के लिए भी एप्लीकेशन दिए और पट्टे का भरा हुआ था फार्म, तो पट्टे मिल गए हम लोगों को, जो यहाँ मौजूद हैं उन लोगों को सबको पट्टे मिल गए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जिसकी आपने बात करी, वो यहाँ 2005 में स्थापित हुई और उसको रीजनल सेंटर यहाँ स्थापित हुआ और एक किराए के भवन में रेंट पर उसका जो है यहाँ संचालित हो रहा है। और उसको ज़मीन 7-8 एकड़ ज़मीन चाहिए थी और दूसरी यूनिवर्सिटियों को अपना कैंपस वगैरह तैयार करना होते हैं, हॉस्टल वगैरह, उसके लिए उन्हें ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती है, तो उन्हें 100 एकड़ 200 एकड़ स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री ज़मीन दी। लेकिन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को 2010 में 6.14 एकड़ जो है ज़मीन भोपाल नगर निगम सीमा में पीपल नेर एक जगह है वहाँ दी और उसके लिए जो रेट जो मांगे गए वो 14 करोड़ रुपए लगभग मांगे गए, जो मार्केट रेट से भी कई गुना ज़्यादा थे। तो उसके लिए बराबर लड़ाई लड़ी गई थी और अब कामयाबी मिली, जिसमें आपका रहनुमा अधिकार मंच जो है उसने भी बहुत सहयोग किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इन्होंने, और समाज के हर वर्ग के शिक्षित लोग या जो समाज को शिक्षित करना चाहते हैं, समाज को सुधार करना चाहते हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। रंग क्या है एक्चुअली में मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं हूँ मुंबई, यहाँ मेरे हस्बैंड का है ये शहर, और तकरीबन 8 महीना पहले
महबूब सुबानिया जो दरगाह है वहाँ पे रहनुमा ऑफिस वाले आए थे, वहाँ मीटिंग की गई थी। तो हम लोग यहाँ पे लेडीज़ वगैरह, ये ज़्यादातर तो लेडीज़ को जाने की इजाज़त नहीं है, जेंट्स जाती हैं, मगर हम फिर भी यहाँ पे लेडीज़ इकट्ठा होके वो मीटिंग में ज्वाइन हुए थे। फिर मस्तान सर ने हमारे जो हक है, हमारा जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बताया गया कि हमको ऐसा आगे बढ़ना है, ऐसा करना है कि आंगनवाड़ी टीचरां क्या करती हैं, गवर्नमेंट से जो इतनी हेल्प आती है हमको नहीं मिलती, और हमारा क्या क्या है, लड़कियों को कैसा करना चाहिए, हम औरतें बाहर निकलना, हम कुछ करना। क्या है साहब, इनकम सर्टिफिकेट बनाना, इसको 4-5 दिन पीछा लगना और इसमें टाइम वेस्ट होता था। 400 से 500 रुपये कमाने वाले अपन, अब इसको टाइम नहीं दे सकते ना। अभी उधर जाएंगे तो फिर हम इधर अपने को प्रॉब्लम हो जाता, इधर का पैसा वेस्ट। कि पूरा स्कॉलरशिप के वर्क के लिए कम से कम उनको जो है ना इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करने के वो 300-400 रुपये चले जाते, फिर इसको 1000 रुपये लग जाता था, तो भी पूरा वर्क नहीं होता जल्दी। इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने का था, फिर गवर्नमेंट ने चेंज किया कि इनकम सर्टिफिकेट बजाय आप एक बॉन्ड पेपर के ऊपर एफिडेविट दे दीजिए, आपका इनकम का ओन सेल्फ एफिडेविट भी दे सकते हैं। फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया, प्रिंसिपल्स कैन गिव दैट डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स जो होता है, उसके ऊपर ऐसा एक फॉर्म सा था, वो प्रो फॉर्म हमको दिया गया, तो उससे आसानी हो कि हम खुद ही उसको सर्टिफाई कर दिए कि उनका इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर देखकर या तो रेशन कार्ड के ऊपर देखकर, तो उसमें बड़ा वो लोग को रिलीफ हुआ कि ऑफिस जाना नहीं है या कोई मुसीबत नहीं है, उनके साथ आसानी के साथ वो लोग खुशी कर लेंगे। ये फॉर्म हम भर के स्कूल वालों को देंगे, देने के बाद जो है ना स्कूल वाले कार्रवाई करेंगे सब, इसके बाद हमारा काम हो जाता, उसके बाद नेट पे पैसा आ जाता, तो अपन उधर से आसानी से ले ले सकते। We have developed a management and information system (MIS) for the Rehnuma program. The MIS, what it does is takes in information. So there are people who constantly feed in information, update it. And there are prescribed formats given to them in which they fill it and then they upload the information. And then we have specified formats and specified reports in which we can get the information we want. MIS, what it gives us is for any particular time duration, what are the number of applications we have forwarded to the respective authorities, and what is their status. So are they cleared, not cleared? If not, where are they stuck? And how many of them are cleared? As in how many people have got benefit? जैसे हम ये काम शुरू किया, हम समझे कि ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम ये जो 16 बस्तियाँ मुस्लिम्स की हैं और ये जो 4 बस्तियाँ हम पूरे 20 लम्स हो जाते हैं, ये पूरे हमारी बस्तियाँ हैं। हमको यहाँ की हर चीज़ पर काम करना है, सिर्फ औरतों के साथ काम करने से औरतों के मसाइल हल नहीं होंगे। ये हम रहनुमा के साथ साथ काम करते हुए बात करते हैं। The concept of Rehnuma, not as a full center, but there were at least of facilitation was then picked up, and the 12th five-year plan has already brought in that every district will have a facilitator. That's already a big job. But one facilitator in an entire district can do mighty little. We are advocating for a full-fledged single window system. The idea was that we are creating pilots, demonstration sites, which are then upscaled by the state itself. As in, we are delighted that the 12th five-year plan actually talks of entitlement centers. Then we have also heard from the Ministry of Minority Affairs that they have started working on entitlement centers, so which are not, in terms of the basic nature, are not very different from what we have created as Rehnuma centers.